Morning, children. Today we will be reading about degree of comparison. Unit number 13 from your grammar book. Children, unit of comparison is a very important unit in your grammar book. It will tell you about how to compare two things, three things together, or between each other. And children, comparison तभी होता है जब हम किसी की qualities को देखते हैं. So degree of comparison always happens between adjectives, because adjectives are describing what they describe the quality of something. Correct? We have done that when we did the revision. Let's see what chapter has to say to us. Okay, let's see here. Students, you know that we use adjectives to compare persons, animals, or things. We use degree of comparison when we compare one person or thing with another. That is right. The Taj Express is a fast train. The Taj Express is not as fast as the Shatabdi Express. There are many other trains faster than the Taj Express. Now see, यहाँ पे fast, faster and fast use किया गया है to compare different trains to each other. Okay. Next one. A CFL is more energy efficient than a bulb. It may seem costlier than a bulb, but it saves money in the long run. Again, see, more is used to compare, then costlier is used to compare. Next one. There are many hard-working workers in this factory. People say that Satish is more hard-working than his friends. In my opinion, Satish is the most hard-working person in the factory. Now see children, here three different states of hard-working is used. Hard-working, more hard-working and most hard-working. So that is basically the degree of comparison of hard-working. This is the present. Okay, let's see the next page and then you will get to understand what am I saying. Here, all the underlined words are adjectives. When we don't make any comparison, or we want to say that person or thing is equal to some other thing in some particular way, we use positive degree. So this is positive degree. Examples are, this shirt is white. It is as white as milk. Okay. Iron is useful metal. Iron is as useful as copper. Now see, when you want to say that it is equal to some other thing, or you don't want to compare, okay, don't make any comparison, then you use the positive degree. Very important children, please remember these two words, comparison, no comparison, and when you want to tell that something is equal to something. For example, use as useful as or as white as. यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो उतनी सफ़ेद है जितना दूध, या फिर आयरन उतना ही यूज़फुल है जितना कि कॉपर. तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, यानी कि द फर्स्ट डिग्री, दैट इज़ पॉजिटिव. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री. जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. जैसे कि दिस रोड इज़ बिजियर देन दैट रोड, तो दो रोड हो गए, दिस एंड दैट. आगरा फोर्ट इज़ लार्जर देन द रेड फोर्ट. आगरा फोर्ट इज़ लार्जर देन द दिल्ली रेड फोर्ट. दिल्ली में है ना रेड फोर्ट. दीज आंसर्स आर मोर डिफिकल्ट दैन दोज रिटन बाय यू. यानी कि ये आंसर्स, तुमने जो आंसर्स लिखे हैं उनसे कई ज़्यादा डिफिकल्ट हैं. सिल्वर इज़ कॉस्टलियर देन आयरन. आयरन से ज़्यादा कॉस्टलियर सिल्वर है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. Children, we will be doing only 3 pages of this unit today and rest we will do tomorrow. Okay. When we compare more than 2 people or things, I'm reading here, we use superlative degree of comparison. अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी चिल्ड्रन. पॉजिटिव पढ़ा हमने और कंपैरेटिव पढ़ा. पॉजिटिव में एक जना होता है, कंपैरेटिव में 2 होते हैं और सुपरलेटिव में 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं. ओके. So this is the difference between positive, comparative and superlative degree.
ऑफ एनी एडजेक्टिव। और किस चीज़ का होता है ये डिग्री? एडजेक्टिव का होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स गिवन हियर। इट डोनेट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। सुपरलेटिव जो है ना, एज सुपर, देखो सुपरलेटिव में दो वर्ड्स है, सुपर एंड लेटिव। कंपैरेटिव में एक ही वर्ड है, कंपेयर। ओके, कंपेयर से कंपैरेटिव बना है। तो सुपरलेटिव में सुपर चीज़ें दिखाई देती है, यानी कि जो सबसे बेहतर है। कंपैरेटिव में दो चीज़ें होंगी, दो के बीच में कंपैरिजन होगा, और पॉजिटिव में एक ही होगा। ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स हियर। मिस्टर अंबानी इज़ द वेल्दीएस्ट पर्सन इन इंडिया। यानी कि बहुत सारे इंडिया में लोग हैं, लेकिन उन सब में से सुपर कौन है? अंबानी है। तो सुपरलेटिव अंबानी के लिए यूज होगा, ठीक है। द टाइगर इज द मोस्ट फेरोशियस एनिमल। टाइगर सबसे ज़्यादा फेरोशियस एनिमल है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है? टाइगर है फेरोशियस। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी। एक सिटी में बहुत सारे टेम्पल हैं, लेकिन ये टेम्पल जो है ये सबसे ओल्ड है, ठीक है। अब देखो, इन सब में अगर आप देखोगे चिल्ड्रन, तो ये सुपर वाला एक जो क्वालिटी है ना वो आएगा। पुराना है तो सबसे पुराना है, फेरोशियस है तो सबसे ज़्यादा फेरोशियस है, मोस्ट फेरोशियस है, ठीक है। वेल्दी है तो सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट है, और इम्प्रेसिव है तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ओके, सो दैट्स हाउ वी सी सुपरलेटिव डिग्री। ऑल्सो चिल्ड्रन, वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, हम कंपैरेटिव में जब कोई कोई वर्ड होता है जहाँ पे हम उसका IEST करके या फिर EST करके हम उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पाते, लेकिन उसमें हम मोस्ट का यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव में हम मोर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ठीक है। रोजेज आर मोर ब्यूटिफुल दैन लिलीज, बट लोटस आर द मोस्ट ब्यूटिफुल। यानी कि रोजेज जो हैं लिली से ज़्यादा ब्यूटिफुल हैं। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तो हमने लिखा मोर ब्यूटिफुल। अब हमने सबके बीच में कंपेयर कर दिया, सारे क्लास के बीच में, तो हमने बोल दिया मोस्ट ब्यूटिफुल। ओके, दैट्स हाउ इट गोज फॉर फ्यू वर्ड्स। सो यू विल हैव टू सी, गो थ्रू द इंटरनेट डिक्शनरी एंड देन सी कि कौन सा है जिसके संग यूज़ होता है मोस्ट एंड मोर, और कौन से हैं जिनका आप सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म बना सकते हैं। लेट्स सी द एक्सरसाइज नाउ। You already know about formation of comparative and superlative degree. Children, ये फोर्थ क्लास में भी था, that is why I am not explaining in detail. आपने ये पहले भी किया है, फोर्थ क्लास में भी comparison, degree of comparisons है. So basically we are doing it once again. Let's see that. Most adjectives form their comparative and superlative degree by adding ER and AST. Generally इसमें ER लग जाता है और इसमें EST लग जाता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ओके, इट विल बी लाइक दिस। आई एम डूइंग इट फॉर यू चिल्ड्रन, सो दैट आपको आज एक आइडिया हो जाएगा, ताकि आप आगे की एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। ऑलराइट, लेट्स सी द B1. A positive degree ends in E. We only add R and ST. देखो, हमने यहाँ पे ER और EST लगाया था, लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री में ऑलरेडी E आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस सेफ, SAFE, यहाँ पे तो E ऑलरेडी है, तो अब ये वाला E नहीं लगाएंगे, आप खाली R लगाएंगे और EST लगाएंगे, ठीक है। दैट्स इट। लेट्स सी। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। यहाँ पे देखो नोबल आएगा, ठीक है। आप ST हटा के देखोगे तो आपको पॉजिटिव डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। नोबल आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, नोबलर आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और नोबलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। देखो, वाइट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। सेफ, सेफर एंड सेफेस्ट। एबल,
चिल्ड्रन, आई डोंट थिंक दिस इज राइट. एबलेस्ट कुछ नहीं होता है, मोस्ट एबल होता है. ही इज़ द मोस्ट एबल पर्सन इन दिस कंट्री. दिस इज रॉन्ग. रादर आई एम टेलिंग यू, एबलेस्ट नहीं होता है. ABLEST, ये गलत वर्ड है, ये कोई वर्ड नहीं होता. इट इज़ एन इंडियनिज्म एरर. आप हमेशा एबल, मोर एबल और मोस्ट एबल ही लिखेंगे. प्लीज डिलीट इट फ्रॉम हियर. ओके, नेक्स्ट वन. व्हेन द वर्ड्स एंड इन वाई प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट एंड वाई आएगा. वाई इज चेंज्ड इनटू आई before adding ER and EST. ओके, जहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट पता है आपको क्या होते हैं, ठीक है. कॉन्सोनेंट ऑफ वाई आएगा तो वाई जो हट के वाई आई हो जाएगा और EST एंड ER लग जाएगा फॉर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट. होली, होलियर, होलीएस्ट. सिली, sillier and silliest. Dirty, dirtier, dirtiest. And wealthy, wealthier, wealthiest. प्लीज़ चिल्ड्रन, आप इन सबको लिख के बुक में मुझे भेजेंगे फोटोज फॉर द होमवर्क. D1. When the words end in vowel plus y, we add EN, ER. Sorry, ER and EST. जब vowel plus y होता है, यहाँ नहीं, vowel plus y होगा तो आप खाली EST एंड ER ही लगाएंगे चिल्ड्रन. ऑलराइट. गे, gayer, gayest. Gray, grayer and grayest. Let's see the next page. Children, similarly you have to basically follow the formula which is given in the headings here, and you have to fill in the fill in the blanks. This we will do tomorrow. Alright children, that's it for today. Thank you so much, and please do your homework and submit on time.